और इसी के साथ भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह से हमने मोक्ष शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता के सभी 700 श्लोकों को सफलतापूर्वक बोलना सीखा। वैदिक पारायणम यानी चैंटिंग एक ऐसा शुभ संस्कार देता है जिसके होने से इसके पश्चात गुरु से इन शब्दों का अर्थ सुनने पर इन शब्दों का अर्थ सहज ही ग्रहण हो जाता है। अर्थात हमें गीता का पारायणम यानी चैंटिंग नित्य करते रहनी चाहिए। इसी विचार से संपूर्ण गीता की चैंटिंग वीडियोस इस चैनल पर हमेशा उपलब्ध है ताकि हम बार बार इनका उपयोग कर चैंटिंग का नित्य अभ्यास कर सकें, सुन सकें, सीख सकें व ईश्वर अनुग्रह प्राप्त कर अपना जीवन सार्थक कर ज्ञान की योग्यता प्राप्त कर सकें। इस सेशन में मैं अभ्यास के लिए 18वें अध्याय के सभी श्लोकों को एक साथ कहूँगी, हिंदी व इंग्लिश अर्थ सहित। आप भी मेरे साथ चैंट कर सकते हैं। With this, by the grace of Sri Krishna, we successfully learned the chanting of all the 700 verses of the sacred text called Srimad Bhagavad Gita, which is aimed at giving liberation. Vedic chanting results in giving oneself the ability to later understand the meaning of these blessed words easily when heard from a guru. That is why we must keep chanting them regularly. With this thought, all the chanting videos consisting of all the chapters that we learned on this channel shall always be available here on this channel page for us to make use of it again and again. We may keep practicing them regularly, gain the grace of Ishvara and make ourselves fit for gaining knowledge. In this session, I will chant all the verses of chapter 18 together along with their meanings in Hindi and English. You may please chant along with me. Atha Ashtadashodhyayah Arjuna Vacha Sannyasasya Mahabaho Tattvamicchami Veditum Tyagasya cha Hrishikesha Prithak Keshini Shudana Arjuna Vacha Sannyasasya Mahabaho Tattvamicchami Veditum Tyagasya cha Hrishikesha Prithak Keshini Shudana। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे अंतर्यामिन, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। Arjuna said, O mighty armed Rishikesha, O slayer of the demon Keshi, I want to know distinctly the truth about sannyasa as also about tyaga. Shri Bhagavanuvāca Kāmyānaṁ karmaṇaṁ nyāsam Sannyāsam kavayo viduh Sarva karma phalatyāgam Prahustyāgam vichakṣanaha। Shri Bhagavanuvāca Kāmyānaṁ karmaṇaṁ nyāsam Sannyāsam kavayo viduh Sarva karma phalatyāgam Prahustyāgam vichakṣanaha। श्री भगवान बोले, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। श्री भगवान said,
The learned ones know sannyasa to be giving up of the actions done with a desire for reward. The wise call the abandonment of the results of all works as tyag. त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य है, और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। Some learned people say that action which is inherently evil should be given up, and others say that the practice of sacrifice, charity, and austerity should not be given up. निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तुम मेरा निश्चय सुनो, क्योंकि त्याग सात्विक, राजसिक और तामसिक भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। O the most excellent among the descendants of Bharata, hear from me the firm conclusion regarding that tyag. For O greatest among men, tyag has been clearly declared to be of 3 kinds. Yajna dana tapah karma na tyajyam karyameva tat यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। The practice of sacrifice, charity and austerity is not to be abandoned. It is surely to be undertaken. Sacrifice, charity and austerity are verily the purifiers of the wise. एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है।
But even these actions have to be undertaken by renouncing attachment and hungering for results. This is my firm and best conclusion, O Partha. Niyatasya tu sannyasaha कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है। इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। The abandoning of daily obligatory acts which are nitya karmas is not justifiable. Giving up that through delusion is declared to be based on tamas. Dukkhamiteva yat karma kaya klesha bhayat tyajet sakritva rajasan tyagam नैव त्यागफलं लभेत्। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है। ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। Whatever action one may relinquish merely as being painful from fear of physical suffering, he having resorted to renunciation based on rajas will surely not acquire the fruits of renunciation. Yamityeva yat karma niyatam kriyate arjuna sangam tyaktva phalam chaiva satyagas satviko mataha karyamityeva yat कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है वही सात्विक त्याग माना गया है। Whatever obligatory duty is performed just because it is to be done, O Arjuna, by giving up attachment and the results as well, that renunciation is considered to be based on sattva. Na dveshtya kushalam karma kushalena त्यागी सत्त्वसमाविष्टः मेधावी छिन्न संशयः न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टः मेधावी छिन्न संशयः। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष संशय रहित बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। The man of renunciation, well established in sattva, who is wise and freed from doubts,
does not hate unmeritorious action, nor does he cling to meritorious works. Nahi dehabhrita shakyam tyaktum karmasya sheshatah yastu karma phalatyagi satyagitябभिधीयते. नहि देहभृता शक्यं त्याक्तुं कर्मस्य शेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते. क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किए जाना शक्य नहीं है, इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी कहा जाता है. Since it's not possible for one who holds on to the body to give up actions entirely, therefore he on the other hand who renounces results of action is called a man of renunciation. अनिष्टमिष्टमिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् भवत्यत्यागिनां प्रीत्या न तु सन्न्यासिनां क्वचित्. अनिष्टमिष्टमिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् भवत्यत्यागिनां प्रीत्या न तु सन्न्यासिनां क्वचित्. कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता. The fruits of works is threefold: disagreeable, agreeable and mixed. It accrues to non-renouncers after their death, but never to the renouncers. Panchaitani mahabaho कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्. पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्. हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तुम मुझसे भली भांति जानो. O mighty armed one, know from me these 5 factors for the accomplishment of all the actions told in the Shastra at the end of the Vedas, that is Vedanta, which is the point of culmination of Shthanam tatha karta karanam cha prithak vidham vividhascha prithak cheshtaha दैवं चैवात्र पंचमम्. अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टाः दैवं चैवात्र पंचमम्. इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के कारण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5वां हेतु दैव है. The physical body, so too the agent, the distinct and diverse activities of the pranas, and indeed Daiva, the presiding deity, is the 5th here. शरीरवाङ् मनोभिर्यात्
कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये पांचों ही कारण हैं। Whatever action a man performs with the body, speech and mind, be it just or unjust, these five are the causes. Tatraivam sati kartaram atmanam kevalantu yaha pashyatyakrita buddhitvat न स पश्यति दुर्मतिः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। This being the case, anyone who, owing to the imperfection of his intellect, perceives the absolute self as the agent, that man does not perceive properly because of an immature mind. Yasya naham krito bhavaha buddhir yasya na lipyate hatvapi sa imal lokan nahanti na nibadhyate यस्य नाहं कृतो भावः बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मार कर भी वास्तव में न तो मारता है और न पाप से बंधता है। He who has not the feeling of egoism, whose intellect is not tainted, he does not kill nor does he become bound even by killing these creatures. ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये तीन प्रकार की कर्म प्रेरणा है और कर्ता, करण तथा क्रिया ये तीन प्रकार का कर्म संग्रह है। Knowledge, that is the vritti corresponding to an object, the object of knowledge and the knower are the threefold impeller of actions. The means of doing, that is the instrument, the object of the action and the agent are the threefold constituents of karma. Jnanam karma cha karta cha tridhaiva guna bhedataha प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि ज्ञानं
कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से तीन प्रकार के ही कहे गए हैं, उनको भी तो मुझसे भली भांति सुनो। Knowledge, action and agent are stated in the teachings about the gunas to be of only 3 kinds according to the differences of the gunas. Hear about them also as they are from me. सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। Know that knowledge to be originating from sattva, through which one sees a single, undecaying, undivided entity in all the diversified things. पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तुम राजस जानो। But know that knowledge to be originating from rajas, which amidst all the things apprehends the different entities of various kinds as distinct. Yattu kritsnavade kasmin कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्। यत्तु कृत्स्नवदे कस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। But that knowledge is said to be born of tamas, which is confined to one form as though it were all, which is irrational, not concerned with truth and trivial. Niyatam sangarahitam aragadveshatah kritam aphalapprepsuna karma yattat sattvikamujjate। नियतं संगरहितं अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कहा जाता है।
The daily obligatory action which is performed without attachment and without likes and dislikes by the one who does not hanker for rewards, that is said to be born of sattva. Yattu kamepsuna karma sahankarena va punaha क्रियते बहुलायासं तत्राजसमुदाहृतम् यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तत्राजसमुदाहृतम्। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुषों के द्वारा या अहंकार युक्त पुरुषों द्वारा किया जाता है वह कर्म राजस कहा गया है। But that action is said to be born of rajas, which is done by one desirous of results or by one who is egoistic, and which is highly strenuous. Anubandham kshayam hinsam anapekshya cha paurusham mohadarabhyate karma yattattamasamuchyate. अनुबंधं क्षयं हिंसाम् अनपेक्ष्य च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है वह तामस कहा जाता है। That action is said to be born of tamas, which is undertaken out of delusion and without consideration of its consequence, loss, harm and ability. Mukta sango naham vadi धृत्युत्साहा समन्वितः सिद्ध्य सिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। मुक्त संगो नहं वादी धृत्युत्साहा समन्वितः सिद्ध्य सिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। जो कर्ता संग रहित, अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर शोक आदि विकारों से रहित है वह सात्विक कहा जाता है। The agent who is free from attachment, not egoistic, endowed with fortitude and diligence, and unperturbed by success and failure, is said to be possessed of sattva. Ragi karma phala prepsuhu lubdho himsatmako shuchihi हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। रागी कर्म फल प्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। जो कर्ता आसक्ति से युक्त, कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला, अशुद्धाचारी और हर शोक से लिप्त है, वह राजस कहा गया है। The agent who has attachment, who is desirous of the results of actions, covetous, cruel by nature,
unclean and subject to joy and sorrow is declared to be possessed of rajas. Ayuktav prakritiस्तब्धः षठो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते. अयुक्तः प्रकृतिस्तब्धः षठो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते. जो कर्ता अयुक्त, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला, आलसी और दीर्घ सूत्री है, वह तामस कहा जाता है. द एजेंट हु इज अनस्टेडी, नाइव, unbending, deceitful, wicked, lazy, and procrastinating is said to be possessed of tamas. बुद्धिर्भेदन्धृतिश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय. बुद्धिर्भेदन्धृतिश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय. हे धनंजय, अब तू बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार के भेद को मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुनो. O Dhananjaya, listen to the classification of the intellect as also of fortitude, which is threefold according to the gunas, while it is being stated elaborately and severally. Pravritting cha nivritting cha karyakarye bhayabhaye bandham moksham cha ya vetti बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी. प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी. हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है. O Partha, that intellect is born of sattva, which understands action and withdrawal, duty and what is not duty, the sources of fear and fearlessness, and bondage and freedom. Yaya dharmam cha karyam cha karyameva cha ayathavat prajanati buddhi sa partha rajasi. यया धर्ममधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी. हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है. O Partha, that intellect is born of rajas, with which one wrongly understands virtue and vice,
as also what ought to be done and ought not to be done. अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। ओ पार्थ, that intellect is born of tamas, which being covered by darkness considers vice as virtue and verily perceives all things contrary to what they are. धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विकी है। O Partha, the firmness that is unfailing through concentration, with which one restrains the functions of mind, vital forces and organs, that firmness is born of sattva. Ya tu dharma kamarthan dhritya dharayate arjuna prasangena phalakankshi धृतिः सा पार्थ राजसी। यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी। परंतु हे पृथा पुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ और कामों को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी है। But O Partha, the firmness with which one holds on to the righteousness, covetable things and wealth, being desirous of their fruits as the occasion for each arises, that firmness is born of rajas. Yaya swapnam bhayam shokam vishadam madameva cha na vimunchati durmedha धृतिः सा पार्थ तामसी। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। That firmness is considered to be born of tamas, due to which a person with a corrupt intellect does not give up sleep, fear,
sorrow, despondency as also sensuality. सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभा अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभा अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। हे भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुखों को भी तुम मुझसे सुनो। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवा आदि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत का प्राप्त हो जाता है। Now hear from me, O scion of the Bharata dynasty, as regards the 3 kinds of joy, that in which through practice one delights reaching the end of pains. Yattadakre vishameva pariname mritopamam तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम् यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम्। जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में वह अमृत के तुल्य है। इसलिए वह परमात्मा विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। That which is like poison in the beginning, but comparable to nectar in the end, and which arises from the purity of one's intellect, that joy is spoken of as born of sattva. Vishayendriya samyogat yattadagre mritopamam pariname vishameva तत्सुखं राजसं स्मृतम् विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। That joy is referred to as born of rajas, which arising from the contact of the organs and their objects is like nectar in the beginning, but like poison at the end. Yadagre chanubandhe cha sukham mohanamatmanaha nitralasya pramadotham तत्तामसमुदाहृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम्। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। That joy is said to be born of tamas, which both in the beginning and in the consequence is delusive to oneself and arises from sleep, laziness and inadvertence. न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवे
देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यद्धेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यद्धेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति के उत्पन्न इन 3 गुणों से रहित हो। There is no such entity in the world or again among the gods in heaven which can be free from these 3 gunas born of nature. Brahmana Kshatriya Visham Shudranam cha parantapa Karmani pravibhaktani Svabhava prabhavairgunaiः Brahmana Kshatriya Visham Shudranam cha parantapa Karmani pravibhaktani Svabhava prabhavairgunaiः। हे परंतपा, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। O scorcher of enemies, the duties of Brahmanas, the Kshatriyas and the Vaishyas as also of the Shudras have been fully classified according to the gunas born from nature. Shamo damastapashaucham Kshantirarjavameva cha Jnanau vijnanamastikkyam Brahma karma svabhavajam Shamo damastapashaucham Kshantirarjavameva cha Jnanau vijnanamastikkyam Brahma karma svabhavajam। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सभी ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। The natural duties of the Brahmanas are the control of the internal and external organs, austerity, purity, forgiveness, straightforwardness, knowledge, as also wisdom and faith. Shauryan tejo dhritir dakshyam yuddhe chapya palayanam danamishvara bhavascha kshatram karma svabhavajam Shauryan tejo dhritir dakshyam युद्धे चाप्यपलायनम् दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना और स्वाभाविक, ये सब के सभी क्षत्रिय स्वाभाविक कर्म हैं। The natural duties of the Kshatriyas are heroism, boldness, fortitude, capability, and also not retreating from battle, generosity and lordliness. Krishi gauraksha varnijyam
वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् कृषिगौरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। खेती, गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। The natural duties of the Vaishyas are agriculture, cattle rearing and trade. Of the Shudras too, the natural duty is in the form of service. स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिर्लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिर्लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है उस विधि को तुम सुनो। Being devoted to his own duty, man attains complete success. Hear that as to how one devoted to his own duty achieves success. यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। Through one's duty, worshipping him from whom is the creation of the beings, by whom all this is pervaded, a human being gains success. जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। Through one's duty, worshipping him from whom is the creation of the beings, by whom all this is pervaded, a human being gains success. श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्मों को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। One's own duty, though defective, is superior to one's duty well performed. By performing a duty as dictated by one's own nature, one does not incur sin. Sahajam karma kaunteya
सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। अतएव हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। O son of Kunti, one should not give up the duty to which one is born, even though it be faulty, for all undertakings are surrounded with evil, as fire is with smoke. Asakta buddhi sarvatra jitatma vigata sprihaha naishkarmya siddhim paramaham संन्यासेनाधिगच्छति। आसक्ता बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है। He whose intellect remains unattached to everything, who has conquered his internal organs and is desireless, attains through renunciation the supreme perfection consisting in the state of one free from duties. Siddhim prapto yatha brahma tathapnoti nibodha me समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। जो कि ज्ञान योग की परानिष्ठा है, उस नैष्कर्म्य सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार को ही है कुंती पुत्र तुम संक्षेप में ही मुझसे समझो। Understand for certain from me in brief, indeed, O son of Kunti, that process by which one who has achieved success attains Brahman, which is the supreme consummation of knowledge. Buddhya vishuddhaya yuktaha trityatmanan niyamya cha shabdadin vishayams tyaktva रागद्वेषौ व्युदस्य च। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तः धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयांस् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च। विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्द आदि विषयों का त्याग करने वाला, the one being endowed with pure intellect, controlling oneself with fortitude, rejecting the objects beginning from sound, that is sound, touch, form, color, taste and smell, and eliminating attachment and hatred.
विविक्तसेवी लघ्वाशी यत वाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः विविक्तसेवी लघ्वाशी यत वाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः। एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों को संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला, राग द्वेषों को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला, द वन हु रिजॉर्ट्स टू सॉलिट्यूड, eats sparingly, has speech, body and mind under control, to whom meditation and concentration are ever the highest duty, and who is possessed of dispassion. Ahankaram balam darpam kamam krodham parigraham vimucya nirmama shantaha brahma bhuyaya kalpate. Ahankaram balam darpam kamam krodham parigraham vimucya nirmama shantaha brahma bhuyaya kalpate. तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने के पात्र होता है. That person, having discarded egotism, force, pride, desire, anger and superfluous possessions, free from the idea of possession and serene, is fit for the status of Brahman. Brahma bhutav prasannatma na shochati na kankshati samas sarveshu bhuteshu mad bhaktim labhate param. Brahma bhutav prasannatma na shochati na kankshati samas sarveshu bhuteshu mad bhaktim labhate param. फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है. ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त होता है. Becoming Brahman with a tranquilized mind, he does not grieve or desire. Becoming the same towards all beings, he attains supreme devotion to me. Bhaktya mam abhijanati yavan yachhasmi tattvataha tato man tattvato jnatva vishate tadanantaram. Bhaktya mam abhijanati yavan yachhasmi tattvataha tato man tattvato jnatva vishate tadanantaram. उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है.
Through devotion, he knows me in reality as to what and who I am. Then, having known me in truth, he enters into me. सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। Ever engaging even in all actions, one to whom I am the refuge attains the eternal immutable state through my grace. चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा समबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। Mentally surrendering all actions to me and accepting me as the supreme, have your mind ever fixed on me by resorting to the concentration of your intellect. मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारात् न शोष्यसि विनम्ष्यसि। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारात् न शोष्यसि विनम्ष्यसि। उपर्युक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तुम मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाओगे, और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाओगे। Having your mind fixed in me, you will cross over all the difficulties through my grace. If on the other hand, you do not listen to me out of egoism, you will get destroyed. यद्यहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वा नियोक्ष्यति। यद्यहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वा नियोक्ष्यति। जो तुम अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो तुम्हारा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव तुम्हें जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। That you think that I shall not fight by relying on egoism, vain is this determination of yours. Your nature will impel you. स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात्
करिष्यस्य वशोऽपितात् स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुन्नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपितात्। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तुम मोह के कारण करना नहीं चाहते, उसको भी तुम अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करोगे। Being bound by your own duty born of nature, O son of Kunti, you being helpless will verily do that which you do not wish to do owing to indiscrimination. ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। O Arjuna, the Lord residing in the region of the heart of all creatures, revolving through Maya all the creatures as though mounted on a machine. तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे भारत, तुम सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जाओ। उस परमात्मा की कृपा से ही तुम परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगे। Take refuge in Him alone with your whole being, O scion of Bharata dynasty. Through His grace alone you will attain the supreme peace and the eternal abode. इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुमसे कह दिया है। अब तुम इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर जैसा करना चाहते हो वैसा करो। To you has been imparted by me this knowledge which is more secret than any secret. Pondering over this as a whole, do as you like. सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्।
संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तुम फिर भी सुनो। तुम मेरे अतिशय प्रिय हो, इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुमसे कहूँगा। Listen again to my supreme word, which is the profoundest of all. Since you are ever dear to me, therefore I shall speak what is beneficial for you. मन्मना भव मद्भक्तः मत्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। मन्मना भव मद्भक्तः मत्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। हे अर्जुन, तुम मुझ में मन वाला हो, मेरे भक्त बनो, मेरा पूजन करने वाला बनो और मुझको प्रणाम करो। ऐसा करने से तुम मुझे ही प्राप्त होगे। यह मैं तुमसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो। Have your mind fixed on me, be my devotee, sacrifice unto me and bow down to me. Thus you will come to me alone. This truth do I promise to you, for you are dear to me, O Arjuna. सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तुम केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्व आधार परमेश्वर की ही शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। Abandoning all forms of rights and duties, take refuge in me alone. I shall free you from all the sins. Therefore, do not grieve. इदन्ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मय्योऽभ्यसूयति। इदन्ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मय्योऽभ्यसूयति। तुम्हें यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति रहित से और न बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए। तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। This that I have taught you should not ever be taught to one who is devoid of austerities and to one who is not a devotee. Also neither to one who does not render service, nor as well to one who cavils at me. Ya imam paramam guhyam मद्भक्तेष्विभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्विभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा
मामे वैश्यत्य संशयः। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों से कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। He who imparts this transcendental secret to my devotees, nurturing utmost devotion to me, will doubtlessly attain me. न च तन्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः, भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। न च तन्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः, भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में भी नहीं होगा। None other man other than he does a deed dearer to me, nor is there in the world one dearer to me. अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः, ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः। अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः, ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः। जो पुरुष इस धर्ममय हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा, ऐसा मेरा मत है। And he who will study this sacred conversation between us two, which is conducive to virtue, by him I shall be adored through the sacrifice in the form of knowledge. This is my view. श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः, सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः, सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। Any man who, being reverential and free from cavilling, might even hear this, he too becoming free shall attain the blessed worlds of those who perform virtuous deeds. कच्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा, कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय। कच्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा, कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र का तुमने एकाग्र चित्त से श्रवण किया? और हे धनंजय, क्या तुम्हारा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? O Partha, have you listened to this with concentration?
O Dhananjaya, has your delusion caused by ignorance been dispelled? Arjuna uvacha nashto moha smritirlabdha tvat prasadan mayachyuta sthitosmi gata sandehaha karishyē vacanam tava. Arjuna uvacha nashto moha smritirlabdha tvat prasadan mayachyuta sthitosmi gata sandehaha karishyē vacanam tava. अर्जुन बोले, हे अच्युता, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। Arjuna said, O Achyuta, my delusion has been destroyed and memory has been regained by me through your grace. I stand with my doubt removed. I shall do your bidding. Sanjaya uvacha ityaham vasudevasya parthasya cha mahatmanaha samvadamimam shrausham adbhutam romaharshanam. Sanjaya uvacha ityaham vasudevasya parthasya cha mahatmanaha samvadamimam shrausham adbhutam romaharshanam. संजय बोले, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। Sanjay said, I thus heard this conversation of Vasudeva and of the high-souled Arjuna, a dialogue marvelous and thrilling. Vyasa prasadat shrutavana imam guhyatamam param yogai yogeshwarat krishnat sakshat kathayata swayam. Vyasa prasadat shrutavana imam guhyatamam param yogai yogeshwarat krishnat sakshat kathayata swayam. श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना है। Due to the grace of Vyasa, I heard of this most secret and supreme yoga directly from Krishna himself, the master yogin who elucidated it. Rajan samsmritya samvadamimam adbhutam keshavarjunayoh punyam hrishyami cha muhurmuhu. Rajan samsmritya samvadamimam adbhutam keshavarjunayoh punyam hrishyami cha muhurmuhu. हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। And O King, while repeatedly remembering this unique sacred dialogue between Keshava and Arjuna, I rejoice every moment. Tat
तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्म्यो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्म्यो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित होता हूँ। Repeatedly recollecting that great and extraordinary form of Krishna, I am struck with wonder, O King, and I rejoice again and again. Yatra Yogeshwarah Krishnah Yatra Partho Dhanurdharah Tatra Shrirvijayo Bhutihi Dhruvanirmatirmama. Yatra Yogeshwarah Krishnah Yatra Partho Dhanurdharah Tatra Shrirvijayo Bhutihi Dhruvanirmatirmama. हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री, विजय, विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। Where the master yogin Krishna is, the lord of yogas, and where the bowman Arjuna is, there I deem dwell fortune, victory, prosperity and unfailing prudence. Such is my conviction. और इसी के साथ भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह से हमने मोक्ष शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता के सभी 700 श्लोकों को सफलतापूर्वक बोलना सीखा। वैदिक पारायणम यानी चैंटिंग एक ऐसा शुभ संस्कार देता है जिसके होने से इसके पश्चात गुरु से इन शब्दों का अर्थ सुनने पर इन शब्दों का अर्थ सहज ही ग्रहण हो जाता है। अर्थात हमें गीता का पारायणम यानी चैंटिंग नित्य करते रहनी चाहिए। इसी विचार से संपूर्ण गीता की चैंटिंग वीडियोस इस चैनल पर हमेशा उपलब्ध है, ताकि हम बार बार इनका उपयोग कर चैंटिंग का नित्य अभ्यास कर सके, सुन सकें, सीख सकें व ईश्वर अनुग्रह प्राप्त कर अपना जीवन सार्थक कर ज्ञान की योग्यता प्राप्त कर सकें। And with this, by the grace of Sri Krishna, we successfully learnt the chanting of all the 700 verses of the sacred text called Srimad Bhagavad Gita, which is aimed at giving liberation to oneself. Vedic chanting results in giving oneself the ability to understand the meaning of the blessed words easily when heard from the Guru later. That is why we must keep chanting them on a regular basis. With this thought, all the chanting videos comprising of all the chapters that we learned on the channel shall always be available on this channel page for us to make use of it again and again. We may keep practicing them regularly, gain the grace of Ishvara and make ourselves fit for gaining knowledge henceforth. तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः।